Today I have brought a new topic with some question based on percentage. Guys, do you know what is percentage? You know, so please tell. Percentage symbol is like this. I will So percentage means the symbol is like this. But what it means? Percentage means out of 100. Out of 100. In fraction, we will write whatever the number is, but out of 100 is like this. And when we suppose here comes 72. So we know that 72 by 100, so we know 100 come. But how we will write in this percentage? We write 72 and the symbol of this percentage. So we will discuss in the next class about percentage. First I brought word problems with you to share. Okay, so here I have brought a question with you. Okay, so let's read the question what it is written. Mrs. Kadam bought a TV for rupees 16,400. Once again I am reading. Mrs. Kadam bought a TV for rupees 16,400 and sold it for rupees 13,120 and sold it for rupees 13,120. So here comes that what was his profit or loss in percentage. So we have to find what was his profit and loss in percentage. So for that, you know that what is profit. In your own standard, I am telling you, in your own standard, it is very easy to learn. That means profit means you just take like advantage. You know the spelling of advantage? ADVAN. I am repeating. ADVANTAGE. Advantage. इसका मतलब होता है फायदा. हमें कितना फायदा हुआ. और उस तरफ लॉस यानी कि डिसएडवांटेज. बस एडवांटेज के जस्ट थोड़े से आगे डिसएडवांटेज आएगा. उसका मतलब कि हमें कितना नुकसान हो. तो हमें आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस. बट हियर आस्क्स इन परसेंटेज. So we will do answer, then we will know what is in percentage. So let's start our answer. So first you have to learn the question. It says Mrs. Khanam bought a TV for rupees 16,400. So brought means bring. How will bring, and sold means how we sell it. Okay. So first brought we will write answer is equal to CP also will write. That means I am telling you cost price of TV is 16,400. And but in every question most times you will see that broad but you don't confuse. It is very easy. That means you see cost price of TV. In broad we write cost price of TV, how much we buy. Okay, in your own sentence you can also write cost price of TV is equal to 16,400. Okay, the short form of this cost price is equal to CP. Okay, once again I am telling cost price of TV. So this cost price the short form is CP. Okay, the next is for rupees 16,400 and sold it for rupees 13,120. कितने में आपने उसे बेचा एक तरह से, तो हम लिखेंगे selling price. Okay, selling price. This is not new word for you. You have learned in every most questions. Selling price of TV. TV आप लिख सकते हैं, टेलीविजन भी हो सकता है. ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन मैं आपको उसका बड़ा फॉर्म ही बता रही हूँ. तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी. ठीक है, तो यानी कि आपने उसे कितने में बेचा. इधर लिखा है एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 13,120. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी कितना था? 13,120. तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं, जैसे कि व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज. हमने अभी तक इतना तो जान लिया कि कॉस्ट प्राइस कितना था और सेलिंग प्राइस उससे कितने में करना था. किससे करना था? कदम को कितने में करना था. दैट मीन्स व्हाट यू विल से, कदम को जो भी कह सकते हैं. ठीक है, तो हमने इतना माना कि व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज. इधर आपने हमेशा मिलाया होगा कि अगर जब भी कॉस्ट प्राइस होता है, अगर ये या ये, आप चलो ये सोचो
कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई चीज़ प्रॉफिट है या लॉस है, परसेंटेज के क्वेश्चन में स्पेशली। अगर देखिए, अगर हमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा, सेलिंग प्राइस जो होगा, एग्जाम्पल ये नहीं है एक्चुअली, लेकिन अगर जो भी होगा ये आपको हमेशा बड़ा मिलेगा और ये भी उससे बड़ा मिलेगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट है। लेकिन इसके अंदर आप देखिए, तो इसके अंदर आप देखिए कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो लॉस है। लॉस, LOSS, लॉस कितना मिलेगा, और हम लॉस कैसे फाइंड करेंगे, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। तो 16400 माइनस बाय 3120, तो जस्ट आप इधर माइनस कर देख लो, इधर मैं कर रही हूँ रफ में, ठीक है। 16400, ठीक है, आप थोड़ा ना बड़े में लिखिए, आपको कंफ्यूजन ना हो। 16 फैला के 400 माइनस बाय 13120, 0 में से 0 कट गया, ये 10 में से 2 गया, बचा 8, ठीक है। 4 में से 1 गया, बचा, यहाँ पे बच गया 3, फिर 3 में से 1 गया, बचा 2, फिर ये बचा 3, 6 में से माइनस किया 3, और ये 0 से 0 हैज नो वैल्यू, तो 320। हमारा लॉस कितना है माइनस करके 3280। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 3280 माइनस आप इधर है देख लीजिए, ठीक है। तो 3280। अब आए हम मेन मुद्दे पर, हमें पूछा, हमने अभी तक तो ये निकाल लिया कि प्रॉफिट और लॉस में हमने लॉस निकाला और हमने उसको सॉल्यूशन भी कर लिया, लेकिन अब बोला है इन परसेंटेज यानी कि लॉस का भी परसेंटेज निकालना है। जैसे लॉस का भी परसेंटेज निकालना है, उसके लिए मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ ईजी सा। देखिए, आप जब भी निकालेंगे कि आपका लॉस है, सबसे पहले हम लॉस लिखेंगे, ठीक है। तो हम नंबर नहीं लिखेंगे, मैं आपको नीचे कर दिखाऊंगी, लेकिन लॉस आप अपने क्वेश्चन को और स्किल अच्छा करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए। जैसे कि ये हमें लॉस पे मिला है, तो लॉस बाय सीपी ऑफ द टीवी, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, तो कॉस्ट प्राइस कितना था 16,400, तो बस आप लिख दो सीपी, इतना बड़ा लिखना है अगर तो आप लिख सकते हैं, इफ यू वांट टू विश यू कैन राइट, बट मैंने इधर शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखा। इनटू परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स इनटू 100, यहाँ पे इधर परसेंटेज भी लिख सकते, मैं लिख देती हूँ परसेंटेज, ठीक है। इफ यू वांट, बट यू कैन राइट इफ यू वांट टू विश। तो लॉस इनटू सीपी इनटू 100। अब हम इसे न्यूमेरिकल वेज में लिखते हैं, जैसे लॉस, अब इसे बार बार नहीं भी लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, अब जस्ट एरो बना दीजिए। अब लॉस कितना था हमारा 3280, उसके बाद सीपी, तो हमने पढ़ा था ना कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना था 16,400, तो 16,400 इंटू परसेंटेज मतलब कि 100। तो हमें देख लीजिए 2 जीरोस हम इधर से कट गए, आपने फ्रैक्शन में जीरोस काटना भी पड़ा होगा, 0 और 0, अगर इधर 2 जीरोस होता तो ऑब्वियसली उसको भी काटते हैं, लेकिन 2 और 2 तो 2 जीरो काट गए। अब 1 0 और 1 इज द बाय द गिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो हम उसको इतना मायने नहीं रखते, ठीक है। अब आप इसे किस में काटेंगे, आप इसे चाहे 4 से भी काट सकते हैं, ये सारे इवन नंबर्स उसमें से काट सकते हैं, मैं तो उसमें 4 में से काट रही हूँ, तो आप 4 उसमें से सॉरी 4 में से काट कर आप पाएंगे 820 पाएंगे, ठीक है। और इसको कर आप पाएंगे 41, और 41 में 20, जैसे आप देख लीजिए 41 में, सॉरी मेरे लीजिए 41 में 2 कर देखिए 82। अब आप सोचेंगे कि 0 कहाँ आ गया, तो देखिए जो 0 है आप उसे उधर ही लगा दीजिए, तो 20, तो आपका 1 0 और बढ़ जाएगा, आप इधर ही लगा सकते हैं 40, ये 2 तक 41 2 तो 82 हो गया, अब 1 0 बचा जो वो बचा 20, तो फाइनली हमारा आंसर निकल गया इज इक्वल टू 20%। खाली 20% नहीं लिखना, 20% लॉस लिखना है, क्योंकि जब हमने इतना कुछ लॉस निकाला है तो आप अगर ये भूलेंगे तो आपका पूरे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए एक बार और मैं समझा रही हूँ, 20% हमारा लॉस निकला, ठीक है। तो 20% लॉस हमारा इतना है। अब देखिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, बेसिक्स को समझिए तो आपको समझ में आएगा।
देखिए, मिसेस कदम बॉट अ टीवी फॉर ₹16,400। उसे कितना में उसने टीवी को लिया, ठीक है, उसने लिया 16,400 एंड सोल्ड इट फॉर ₹13,120। उसने कितने में बेचा? मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ, कुछ बच्चों को इंग्लिश में थोड़ा हार्ड होता है तो मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। एक इंसान था जिसका नाम था कदम, उसने टीवी 16,400 में लिया, ठीक है, और उसको कितने में बेचा? 13,120। उसने पूछा आपको कितना उसमें फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा परसेंटेज में, ठीक है। मेन तो यही पार्ट होता है, और क्वेश्चन के सीपी और एसपी वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब भी क्वेश्चन बोला है टीवी, तो आप हमेशा ज़्यादातर आप उस क्वेश्चन में देखते होंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, या इन विच यू बाय, ठीक है, इन रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, इधर बोला है ना बॉट, हमने इसको कॉस्ट प्राइस कर दिया, या हाउ वी ब्रॉट इन टीवी करके 16,400, और कितने में आपने बेचा उसे? सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी 13,120। तो मैं आपको दोबारा बता दूँ, जहाँ पर भी अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है इस नंबर से भी, तो वो हमेशा प्रॉफिट होगा, इट विल बी ऑलवेज प्रॉफिट। ये मेथड है, ट्रिक भी है। और अगर लॉस निकालना है तो हमें सीधा पता चलेगा कि ये इससे कम है, हमें पता चल गया इससे कम है तो वो लॉस होगा। तो लॉस में हमने माइनस किया तो हमें 320। आप इधर देख लीजिए, देखिए 6,400, जीरो में से जीरो गया 10, क्योंकि जीरो में से कट गया 10, 8, ये बचा 3, इसको आप हटा दीजिए, ये बचा 3 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 1 गया 2, और 3 में 3 गया, और 1 1 0। तो हम ऑब्वियसली 3280 लिखेंगे, 3280 हमने लिखा। ऑब्वियसली हमें लॉस, तो एक मेथड है, जब भी आप लॉस निकालेंगे तो लॉस वाला नंबर, ये तो लॉस निकला, तो लॉस इंटू सीपी, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, ठीक है, फिर इंटू 100। आप 100 परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। उसके बाद 3280। अब हमने, आप सोचेंगे कि अरे हमने तो ये इधर किया था, लेकिन लॉस कितना निकला था हमारा? ये वो तो मैंने आपको वर्ड्स में बताया था, लेकिन न्यूमेरिकल बेस में ऐसा है 3280, फिर इंटू सीपी कितना था? 16,400 इंटू परसेंटेज, वो सेम आएगा। जीरो जीरो कट हो गया, अगर इधर भी एक और जीरो तो कट हो गया, लेकिन है नहीं तो हमने जीरो जीरो कट किए। आप इसे किसी भी इवन नंबर से कटोगे, पर लेकिन वो 2-3 नंबर बाद कटेंगे, जैसे 21, 22, जो भी आगे आप नंबर लोएस्ट टर्म में करेंगे। ये आपने कट किया तो 820, 41, आप अनदर वे से करेंगे तभी भी आपको 20% लॉस ही मिलेगा, ठीक है। 41 और फिर 41 टू ज़ा, देखिए 41 आप इसे हटा दीजिए, 41 टू ज़ा 8, जीरो भी हटा दीजिए, अगर आपने एक जीरो लगा दिया तो 820 बन जाएगा। तो 41 टू ज़ा और एक जीरो, ठीक है। तो आंसर आने वाला है 20%। अगर आप 20% लिखेंगे, प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखेंगे, तो द फुल होल क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। तो 20% loss. So thank you for watching my TV. Sorry. Thank you for watching my video. Please. Thank you.